اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارباز اور میں فیض، اور آپ لوگ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ کربلا کے اوپر ہے۔ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے امام حسین کے واقعے کے بارے میں، تو پتہ تو سب کو ہے، بٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے پوری طریقے سے ہم جان سکے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ اور اس ویڈیو کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بھائی محرم علی نے، جنہوں نے یہ ویڈیو کریٹ کیا ہے۔ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ کو کرنا چاہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک شیئر اور بیل آئیکن کو تو آپ دبا ہی دیجیے۔ باقی چلتے ہیں۔ اور ہاں ایک چیز، آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھ ملی اور کس ریلیٹڈ ہمیں ویڈیو بنانا چاہیے، یہ بھی آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا، مت بھولنا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا،
जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतनी तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो।
वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और तब कोई लफ्ज़ ही नहीं है बोलने का कि मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है रसूलुल्लाह के नवासों के ऊपर। मतलब उस हाल में भी अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उस हाल में भी उन्होंने शुक्रिया अदा छोड़ा नहीं। बिल्कुल, आपको भी पता है कि करबला का जंग क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि इमाम हुसैन ने जो इस्लाम के लिए किया है वो शायद अभी तक किसी ने ना किया होगा, ना कोई आएंगे कि ऐसा कुछ कर सके। कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने सब कुछ लुटा दिया है ना, अपना जानो माल सब कुछ लुटा दिया। बिल्कुल सब कुछ लुटा दिया और सब बर्बाद हो गया। बिल्कुल। और ये जो जंग हुई थी ये नाहक के ऊपर हुई थी। यजीज ने इमाम हुसैन को बताया था कि मेरे हक में हो जाओ तो मैं तुम्हें मतलब इतना माल दूंगा कि शायद तुमने कभी सोचा नहीं था। पर वो तो ठहरे हैं रसूलुल्लाह के नवासे, इमाम अली के बेटे, तो वो तो हक के बिना कहीं पे जा ही नहीं सकते। तो इमाम हुसैन ने ये सोचा कि नहीं, जो इस्लाम के लिए बेहतर है वही वो करेंगे। और लास्ट में यजीज यही बोले थे कि जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन हमारे हक में नहीं आ रहे हैं तो एक ही रास्ता है, उनको कत्ल कर दिया जाए। उनको कत्ल कर दिया जाए और उनको अपने रास्ते से हटा लिया जाए ताकि उन्होंने इस्लाम पे मतलब ऐसी गफलियत और ऐसे माहौल बना दे ताकि वो इस्लाम से गुमराह हो जाए। पर आपको ये पता है कि जो भी इस्लाम को गुमराह करना या फिर जो भी इस्लाम को ख़त्म करना चाहा वो खुद ख़त्म हो गया, वो खुद मिट गया है। और उनकी तो कब्र का कोई नामो निशान भी नहीं है। फिरौन का भी कब्र का कोई नामो निशान नहीं था, यजीद का भी कोई नामो निशान नहीं है। और आपको भी पता है इमाम हुसैन का कब्र मुबारक आप लोगों को भी पता है कि अभी भी करबला पे उनका जो धड़ है वो वहाँ पे मौजूद है और उनका जो सर है वो मदीना जन्नतुल बकी में मौजूद है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इस्लाम को ख़त्म करना चाह रहा है वो खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया था कि आप लोग जान सकें कि हमेशा हक पे रहें, हमेशा आप हक पे रहें, हमेशा आप इस्लाम की तरफ बढ़ते रहें, इस्लाम को आगे फैलाते रहें। और एक ही बात, हमेशा नमाज पढ़ते रहें क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे और उनका मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, उनके मेरे लिए लफ्ज़ भी कम पड़ेंगे उनको बोलने के लिए। पर उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको चुना इस इस्लाम को आगे फैलाने के लिए। अगर शायद वहाँ पे वो जंग नहीं भी होती तो इस्लाम आज यहाँ नहीं पहुँचता, हम लोग आज यहाँ नहीं होते, इस्लाम कुछ और जगह पे गुमराह होता, हम लोग कुछ और जगह पे गुमराह होते। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश रही है कि हमेशा नमाज पढ़ते रहे 5 वक्त का, ईमान पुख्ता रखे क्योंकि हमारे इमाम हुसैन का ईमान पुख्ता था बोल करके आज उन्होंने अपना शहादत दिया और अपना जान और माल कुर्बान करके इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ बिल्कुल बेशक कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेशक बेशक इमाम हुसैन ने जब उनको शहीद किया जा रहा था तब भी वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और वो ये फरमाए कि अल्लाह ताला ने मुझको ये अदा किया कि मैं यहाँ पे कुर्बान हो रहा हूँ अल्लाह के राह में। बिल्कुल, उन्होंने तो उनको वो दर्जा दिया। बिल्कुल, अभी हम लोग अगर हल्का सा चोट भी लग जाता है, बहुत थोड़ा ज्यादा अगर हो जाता है अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ पाँव छोड़ देते हैं, नमाज वगैरह छोड़ देते हैं। हम लोग घर में कोई भी अगर पूछे तो बोलते हैं क्या करे, मेरा पैर में चोट है, मेरा ये है, मेरा वो है। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोग। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि जो हसन हुसैन का कत्ल किए वो मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल, वो माल और शौहरत में उनको इतना गुमराह कर दिया गया, पर उनके सामने वो रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल कर रहे हैं, उनको ये तक भी होश नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि माल और दौलत इंसान को कहाँ से कहाँ गुमराह कर सकती है। तो हर चीज़ का एक ही हम जो हमारा मोटिव होता है वीडियो बनाने का कि आप नमाज को कायम रखें, ईमान पुख्ता रखें ताकि आप खुद पे हक पे हो सके कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, जाहिर सी बात है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें सुनने और देखने में ज़्यादा तौफीक, अमल करने में तौफीक ज़्यादा पाएं। बिल्कुल, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फजर गई तो नूर गया, जौहर गई तो दौलत गई, असर गई तो सेहत गई, मगरिब गई तो कामयाबी गई, ईशा गई तो सुकून गया। नमाज की अहमियत को समझो।